Hey friends, welcome to another video by the Tangle Learning Hub. And today we are going to analyze the poem The Story of Fidgety Philip. And the poet of this poem is Dr. Heinrich Hoffmann. Dr. Heinrich Hoffmann was a German psychiatrist, and this poem is from the book called Struwwelpeter, which was published in 1845 in Germany. Before starting the poem, let's discuss the title of this poem, the name of the poem, and that is The Story of Fidgety Philip. So it is quite clear from the name of the poem that it is a narrative. Narrative means that poem or that written account which is like a story, which tells a story, जिसमें कुछ कनेक्टेड इवेंट्स हो कि इसके बाद ये हुआ फिर ये हुआ, इस तरीके से एक स्टोरी के जैसे ये पोम है. And the poem's name is The Story of Fidgety Philip. So Philip is obviously the name of this boy. And what is the meaning of fidgety? Fidgety means, fidgety is an adjective. ये वर्ड उस पर्सन के लिए यूज किया जा सकता है जो बहुत ही रेस्टलेस या अनईजी सा रहता हो. इन सिंपल वर्ड्स, जो पर्सन, जो इंसान कोई ना कोई हरकत, कोई ना कोई छोटी छोटी मूवमेंट्स, बॉडी की मूवमेंट्स, हैंड्स की, फीट की, ऐसे मूवमेंट्स करता रहता हो, हिलता डुलता रहता हो, मतलब स्टेबल होके ना बैठ पाता हो. स्पेशली बच्चों में होता है ये, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. कभी पेंसिल उठा ली, कभी इरेज़र, कभी कुछ टेबल पे लिख दिया, या कभी कुछ खींच दिया, कुछ फेंक दिया. So these things, such people are called fidgety people. They cannot control their movements. They keep doing something or the other. So fidgety Philip, this word has been used for Philip. तो Philip जो character है इस poem में, वो fidgety है, means he cannot control himself. He is uneasy, he is restless, he keeps doing something or the other. और जो भी वो करता है, if you can see the photo, if you can see the pictures in your book, the parents who are standing there, they are quite irritated. They are not very happy seeing all these movements being done by Philip, because every time he does something like this, he lands up into trouble or he does something wrong, which irritates his parents. So that was the meaning of fidgety, and let us see what is there in the poem. What is Philip doing? So in the beginning of the poem also it is written that read a poem about a naughty and restless child. So already in the beginning of the poem, the meaning of fidgety has been mentioned: restless child who makes continuous small movements, and these movements obviously annoy and irritate other people. Alright, let's start. Let me see if Philip can be a little gentleman. Let me see if he is able to sit still for once at table. Thus Papa bade Phil behave, and Mama looked very grave. तो फिलिप के फादर यहाँ पे कह रहे हैं कि आज मैं देखूंगा कि फिलिप एक जेंटलमैन के जैसे बिहेव कर पाता है कि नहीं. जेंटलमैन मीन्स अ पर्सन हु बिहेव्स वेरी वेल एंड हु इज़ अ वेरी गुड मैनर्ड पर्सन. तो आज इसके फिलिप के पेरेंट्स ये देखना चाहते हैं कि रोज़ वो कुछ ना कुछ करता रहता है, आज देखते हैं वो क्या वो बिहेव कर पाता है. लेट मी सी इफ़ ही इज़ एबल टू सिट स्टिल फॉर वंस एट अ टेबल. तो उसके डैड देखना चाहते हैं कि क्या आज एक टाइम के लिए क्या वो खाने के टाइम टेबल पे स्टिल होकर बैठ पाता है. स्टिल मीन्स कोई मूवमेंट ना होना, तो बिना मूवमेंट किए वो क्या वो टेबल पे बैठ पाता है. दस पापा बेड फिल बिहेव. बेड मीन्स किसी को कुछ करने के लिए कहना. टोल्ड समवन टू डू समथिंग. तो पापा बेड मीन्स पापा टोल्ड फिलिप टू बिहेव. यहाँ पे बेड का मीनिंग है टोल्ड. तो पापा ने फिलिप को कहा कि तुमने आज बिहेव करना है सही तरीके से. और यहाँ पे फिल वर्ड यूज़ किया गया है. फिल निक नेम है फिलिप का. तो घर पे जैसे आपको निक नेम से आपके पेरेंट्स बुलाते हैं, वैसे ही फिलिप को उसके पेरेंट्स फिल नाम से, फिल निक नेम से बुलाते हैं.
एंड मामा लुक्ड वेरी ग्रेव. ग्रेव मीन्स सीरियस. तो फिलिप के जो मदर थे वो बहुत ही उनके सीरियस एक्सप्रेशंस थे. क्यों? क्योंकि उनको डर था कि आज फिर फिलिप कुछ ना कुछ गलत कर देगा. बट फिजिटी फिल, he won't sit still. He wriggles and giggles and then, I declare, swings backwards and forwards and tilts up his chair. Just like any rocking horse. Philip, I am getting cross. But Philip, he won't sit still. तो पेरेंट्स उसे देख रहे हैं कि वो बिहेव करेगा या नहीं, बट क्या होता है कि फिलिप की मूवमेंट्स फिर से स्टार्ट हो जाती हैं. वो स्टिल मीन्स बिना मूवमेंट के स्टेबल नहीं बैठ पा रहा है. He wriggles and giggles. Wriggles means ट्विस्ट, टर्न के साथ बॉडी को हिला मूव करते रहना. ट्विस्ट्स और टर्न्स के साथ या फिर आगे पीछे होके बॉडी को क्विक मूवमेंट्स देते रहना. So that is called wriggles. And giggles. Giggles means laugh repeatedly. तो continuously जब आप ज़्यादा loudly नहीं but continuously जब आप एक कंट्रोल्ड वे में हंस रहे हो, आप कंट्रोल भी कर रहे हो लेकिन आप हंस भी रहे हो, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हंस रहे हो, कंटिन्यूसली हंस रहे हो, उसे हम कहते हैं गिगल करना. तो ये सब मूवमेंट्स, हंसना और बॉडी मूवमेंट्स फिलिप की स्टार्ट हो गई थी. एंड देन आई डिक्लेयर स्विंग्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. वो क्या करने लगता है? अपनी चेयर को स्विंग्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स एंड टिल्ट्स अप हिज चेयर. तो वो अपनी चेयर को आगे पीछे मूव करने लगता है. मीन्स जब आप चेयर के जो पिछले 2 लेग्स होते हैं उस पे अगर चेयर को बैलेंस करके चेयर को आगे पीछे हिलाओ, उस तरह की मूवमेंट्स वो करने लग गया था, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. सो टिल्ट कर रहा था वो अपनी चेयर को. टिल्ट क्या होता है? एक स्लोपिंग पोजीशन. टेढ़ी सी, स्ट्रेट नहीं होती जब आपकी चेयर, आप थोड़ा सा उसको टिल्ट कर देते हो पीछे को, उसको हम कहते हैं टिल्टेड पोजीशन. जस्ट लाइक एनी रॉकिंग हॉर्स. उसकी चेयर एकदम रॉकिंग हॉर्स के जैसे लग रही थी. रॉकिंग हॉर्स क्या होता है? जो छोटे बच्चों के लिए एक झूले के जैसे घोड़ा होता है जो उस पे बैठ के फिर आगे पीछे वो मूव करता रहता है, उसे हम रॉकिंग हॉर्स कहते हैं. तो उसकी कुर्सी भी उसी तरह से हो गई थी, आगे पीछे वो उसको मूव कर रहा था. तो उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आया. तो उसके डैड ने कहा, फिलिप, आई एम गेटिंग क्रॉस. क्रॉस मीन्स एंग्री, वेरी वेरी अनॉयड, वेरी वेरी एंग्री. तो उसके डैड कहते, फिलिप, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे. तो कैसे उसने ये स्टार्ट किया? रिगल्स, बॉडी मूवमेंट्स, गिगल, हंसना. फिर उसने अपनी चेयर को पीछे को टिल्ट किया और फिर वो चेयर को आगे पीछे करके हिलाने लगा, किसके जैसे? जैसे कोई रॉकिंग हॉर्स होता है. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसमें से पहले हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं. एम जेंटलमैन, ए एबल टेबल, बी बिहेव ग्रेव, सी. तो हमारी राइम स्कीम है ए बी सी. कैन जेंटलमैन, एबल टेबल, बिहेव ग्रेव. Let's move on and let's see what happens next. See the naughty restless child growing still more rude and wild till his chair falls over quite. Philip screams with all his might. Now something bad has happened. The restless child, restless means super active, जो रुकता ही नहीं है, कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट्स करता रहता है. तो पोएट कह रहा है, देखो इस नॉटी, इस शरारती रेस्टलेस बच्चे को, ग्रोइंग स्टिल मोर रूड एंड वाइल्ड, ये और भी ज़्यादा, जो उसकी धीरे धीरे बॉडी मूवमेंट्स, फिर हंसना, फिर चेयर को हिलाना, ये मूवमेंट्स जो इसकी स्टार्ट हुई थी ये बढ़ती ही जा रही हैं और इंक्रीज़ हो रही हैं. ये बच्चा और रूड और वाइल्ड हो गया है. मीन्स और भी ज़्यादा बुरी तरीके से बिहेव कर रहा है. जो उसकी मूवमेंट्स हैं उनमें और ज़्यादा तेज़ी आ गई है और बहुत ही इल मैनर्ड तरीके से बिहेव कर रहा है. तो ये सब मूवमेंट जब स्टार्ट होती हैं तो ये कब तक चलती हैं? टिल हिज चेयर फॉल्स ओवर क्वाइट. तो जब तक उसकी जो चेयर वो हिला रहा था, जब तक वो चेयर गिर नहीं जाती, तब तक उसकी ये मूवमेंट्स चलती ही जा रही थी और बढ़ती ही जा रही थी. तो जब चेयर गिरती है तो फिलिप स्क्रीम्स विद ऑल हिज माइट. स्क्रीम क्या होता है? चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना. तो
फिलिप ने चिल्लाया with all his might. Might means with all his strength, with all his power and strength. He shouted. Obviously, जब वो गिरने वाला था तो he got scared and he screamed. तो जब आप गिरने लगते हो, अगर आप भी ऐसे चेयर पे बैठे हो और आपकी चेयर ऐसे पीछे को गिरने लगती है, आप गिरने लगते हो उस चेयर पे से, तो फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे? सबसे पहले ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी या आपका हाथ आगे की तरफ जाएगा कि मैं कुछ ऐसा पकड़ लूँ कि मेरी चेयर और मैं गिरने से बच जाऊँ। तो वही हुआ, ऑटोमेटिकली फिलिप का हाथ आगे की ओर बढ़ा और उसने क्या किया, उसने जो टेबल पे कपड़ा बिछाया हुआ था उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, फटाफट इसको पकड़ के मैं बच जाऊँ और मैं ज़मीन पे ना गिरूँ, मेरी चेयर ज़मीन पे ना गिरे। So let's see what happens next. Catches at the cloth, but then that makes matters worse again. तो वो कपड़े को पकड़ता तो ज़रूर है, लेकिन इससे जो सिचुएशन थी वो और भी बुरी हो गई। Worse means और भी बुरी होना। और भी बुरी सिचुएशन कैसे हो गई? Let's see that. Down upon the ground they fell. जब आप कपड़े को पकड़ोगे तो कपड़ा भी आपके साथ ही नीचे की ओर ड्रैग हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें और जो चीज़ें कपड़े के ऊपर, डाइनिंग टेबल के कपड़े के ऊपर पड़ी थी, ऑब्वियसली आपका वेट उस सब चीज़ों को खींच रहा है, वो सब कपड़े के साथ ही नीचे आएंगी। तो सब कुछ ग्राउंड की तरफ गिरने लगा। क्या क्या था? ग्लासेस, प्लेट्स, नाइव्स, फोक्स एंड ऑल मीन सब कुछ जो भी पड़ा था टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, वो सब नीचे गिर गया। प्लेट्स, ग्लासेस, प्लेट्स तो इजी है। नाइफ्स, फोक एंड नाइफ क्या होते हैं? छुरी कांटा बोलते हैं जिसे, नूडल वगैरह खाते हैं जिसके साथ उसे हम फोक कहते हैं। तो ये सब कुछ ग्राउंड पे गिर गया। हाउ मामा डिड फ्रेट एंड फ्राउन when she saw them tumbling down, and Papa made such a face. Philip is in sad disgrace. अब उसके पेरेंट्स वहाँ पे थे तो उनका रिएक्शन क्या था? ममा डिड फ्रेट मीन्स वरी। उसके मदर, फिलिप के मदर बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गए, टेंशन में आ गए। एंड शी फ्राउंड क्या होता है? जब आप जो आपके आईब्रोज होते हैं उनको थोड़ा सा इकट्ठा करते हो, एक गुस्से वाला या डिसप्लेजर वाला एक एक्सप्रेशन दिखाने के लिए आईब्रोज को इकट्ठा करना, उनको कहते हैं फ्राउन करना। जब उसके मदर ने ये सब ऐसे टम्बलिंग डाउन होते हुए देखा, टम्बलिंग डाउन मीन्स फॉल सडनली, अचानक से सब कुछ गिर जाना, तो ये सब अचानक से गिरते हुए देखा तो उन्होंने वरी किया और उन्होंने फ्राउन किया, आईब्रोज को इकट्ठा करके थोड़ा सा गुस्सा जाहिर किया। एंड पापा मेड सच अ फेस, और उसके पापा का भी एक अजीब सा फेस बन गया, गुस्से वाला। फिलिप इज इन सैड डिसग्रेस। तो फिलिप कौन सी सिचुएशन में आ गया था? एक डिसग्रेस की सिचुएशन में आ गया था। डिसग्रेस मीन्स जब आपकी कोई रिस्पेक्ट ना रहे क्योंकि आपका बिहेवियर इतना बुरा है, उसको हम कहते हैं डिसग्रेस। तो उसके बिहेवियर के कारण जो पेरेंट्स उसको नोटिस कर रहे थे कि हाँ सही से बैठेगा, जेंटलमैन बनेगा, तो वो सब रिस्पेक्ट उसने अपनी खो दी है अपने बैड बिहेवियर के कारण। तो ये सिचुएशन हो गई थी फिलिप की। वेयर इज फिलिप? वेयर इज ही? फेयरली कवर्ड अप यू सी। तो अब सब देख रहे हैं कि वो गिर तो गया है नीचे अपनी चेयर के साथ और डाइनिंग टेबल के कपड़े के साथ, और सब प्लेट्स, खाना, सब कुछ गिर गया है। तो कह रहे हैं फिलिप कहाँ है? तो जब देखते हैं तो फिलिप कहाँ होता है? कवर्ड अप यू सी, फेयरली कवर्ड अप यू सी। तो जो फिलिप है वो डाइनिंग टेबल के कपड़े के साथ पूरा कवर हो गया है। क्लॉथ एंड ऑल आर लाइंग ऑन हिम। सब कुछ जो डाइनिंग टेबल पे पड़ा था वो सब कुछ अब किसके ऊपर आ गया है? फिलिप के ऊपर गिर गया है और वो उसके कपड़े के नीचे है। ही हैज पुल्ड डाउन ऑल अपॉन हिम। उसने सब कुछ अपने ऊपर ही पुल कर लिया है, अपने ऊपर ही खींच लिया है सब कुछ, और वो नीचे गिर गया है। What a terrible to do. Terrible means extremely bad, बहुत बुरा। एक unnecessary सी सिचुएशन आ जाना जो हमने सोची भी ना हो, और
बहुत सी कन्फ्यूजन हो जाए, उसे हम कहते हैं टू डू। तो एक बहुत ही बुरी सी सिचुएशन आ गई थी, एक बहुत ही हल्ला सा मच गया था, ये टेबल चेयर गिर गई थी, सारा प्लेट्स सब कुछ क्लॉथ ड्रैग कर लिया था उसने, सब कुछ गिर गया था। तो एक बहुत ही बुरी सी सिचुएशन आ गई थी। डिशेस ग्लासेस स्नैप्ड इनटू टू। स्नैप्ड क्या होता है? ब्रोक। जो बर्तन पड़े थे खाने वाले वो सारे टूट गए थे, दो दो पीसेस में वो टूट गए थे। Here a knife and there a fork। एक कहीं पे छुरी पड़ी है, कहीं पे कांटा पड़ा है। Philip, this is cruel work। तो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये बहुत ही बुरा काम किया है तुमने। क्रूअल क्यों है? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक तरह से सफरिंग हो रही है उसके पेरेंट्स को। Table also bare and poor papa and poor mama look quite cross and wonder how they shall have their dinner now। तो जो टेबल था, डाइनिंग टेबल था, उस पे से जो कपड़ा था वो उतर गया था। तो बेयर मीन्स नॉट कवर्ड, कोई भी कवर नहीं था टेबल के ऊपर। पुअर पापा पुअर मामा, वो दोनों बेचारे फिर फिलिप ने कुछ गलत कर दिया है और दोनों उसकी तरफ देख रहे हैं और दोनों ही दे लुक क्वाइट क्रॉस, दोनों ही बहुत गुस्से में है। क्वाइट क्रॉस मीन्स very angry and wonder how they shall have their dinner now। Wonder how they shall have their dinner now means वो दोनों, wonder means वो दोनों सोच रहे हैं, वो दोनों डाउट में हैं, वो दोनों सोच रहे हैं कि अब वो अपना डिनर कैसे खाएंगे। बिकॉज जो डिनर था वो सारा प्लेट्स सारी नीचे गिर गई थी, डिनर सारा फ्लोर पे गिर गया था, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। So this was the poem of Fidgety Philip। Now let us see word meanings from this poem। Fidgety means restless or uneasy. Bade, told someone to do something. Grave, serious. Wriggle, twist and turn with quick movements. Giggle, laugh lightly and repeatedly. Cross, irritated and angry. Might, strength. Fret, worry. Tumble, fall suddenly. Disgrace, to have lost respect because of bad behavior. To do, confused and noisy disturbance. Snapped, broke. Bare, not covered। What is the setting of the poem? Means जो ये करेक्टर है ये कहाँ पे है, कहाँ पे ये सीन चल रहा है। The setting is home। They all are at their home। So they all are at their home। What is the mood of the adults in the poem? Adults means mother and father। उनका mood किस तरीके का है, कैसे वो feel कर रहे हैं। So they are feeling exasperated। Exasperated means irritated and frustrated। Summarize the poem in one line। Bad manners can be extremely irritating। So this is what has been shown in the poem। Bad manners of Fidgety Philip have been shown and then parents are extremely irritated with him। So these are the questions from your Oxford book, Oxford grade 6 book। So next question is fill in the table with required information and line from the poem, who do the words refer to, what was the mood in each event। Okay, so the first line they have given to us is be a little gentleman। So who is saying these words to whom? Father is saying to Philip। And what is the mood of Philip's father? Father is angry। Wriggles and giggles, so who is doing this? Wriggling, giggling is done by Philip। Now what is the mood? Philip won't sit still and parents are exasperated, means very annoyed and irritated। Philip, I am getting cross, who said to whom? Papa said to Philip। And what is the mood? Papa is losing patience। Next, still more rude and wild। Now this is related to Philip's behavior। Philip continuing to misbehave। Now mood of parents, both parents are getting
increasingly angry. Next, screams with all his might. Who screams with all his might? Philip screams when he is about to fall. Philip, what is the mood? Philip may be hurt, also shocked by his fall. His parents are dismayed. Dismayed means unhappy and shocked by the mess. So Philip is hurt and shocked. Parents are dismayed, unhappy and shocked. Next, did fret and frown. Who did this? Fretting and frowning was done by mother, Philip's mother. Now mood of mother is mama is upset because Philip has dragged everything off the table. सब कुछ टेबल से नीचे गिरा दिया है उसने. Next, looked very grave. Who looked very grave? Grave means serious. Mama looked very grave. What is her mood? Mama is upset because Philip is refusing to obey. वो कुछ भी मानने से मना कर रहा है तो उसके मदर अपसेट. Made such a face. Who made such a face? Papa made. Philip's papa made such a face. Why? Because he is shocked and angry. Fairly covered up. You see. Who is covered up? Philip is covered up. वो डाइनिंग टेबल के कपड़े के नीचे पूरा कवर हो जाता है. So this is for Philip. Philip is on the ground, covered by the tablecloth. His parents are looking at him, shocked, angry, and nonplussed, means confused, as they wonder how will they have their dinner now. So they are thinking, they are confused, they are also angry and shocked, and they are thinking how will they have their food now. Philip behaves very badly at the table. Give some examples of his poor behavior. Philip behaves very badly at the table. Some examples are wriggling and giggling after his father asked him to sit still, rocking his chair back and forth, dragging the tablecloth with him when his chair finally tips over, causing everything on the dining table to crash onto the floor. Alright, so these three things are the bad behavior things. Wriggling, giggling, rocking of the chair, that is moving the chair, then dragging the tablecloth. So these were the questions from your book, and I hope you liked the video. If you did, then please like, share, subscribe, comment. Thanks a lot.